students, I am going to start the today's topic, translatory motion. In this type of motion, a whole body means a body of constituent particles move simultaneously from one point to other point, and all constituent particles travels equal displacement in equal time interval. As like, suppose this is a body, equal body, same body, this is the same body, and the body is A, the body is here also A. Consider three particles, one is here and other is here. Name the particle 1, 2 and 3, and also naming it, the particle is 1, the particle is 2 and the particle is 3. The displacement traveled by these three particles, constituent particles, is same. This is the x, this is the x, this is the x, actual this particle x, and this particle also travels the distance x. Means each constituent particles of a body travels equal distance in equal time interval, and hence it is called translatory motion. This is called translatory motion. And the next thing is rectilinear motion. When a point mass object, rectilinear motion. A point object moves on a straight line. A point object moves on a straight line called rectilinear motion. And similarly, the curvilinear motion means a body moves on a curved line. A particle moves on a curved line known as the curvilinear motion. But some little bit different in rotational motion. In rotational motion, an object of constituent particles covers unequal distance in equal interval of time. Means, suppose that I have a disk and this is a axis of rotation, marker is the axis of rotation, and just it rotate, and this object is in rotational motion as you see, and this body, this disk like body or object is in rotational motion. As like, suppose this is the object, body moves on such a this type, this structure, rotational motion. It means a disk is, suppose that this is the disk, and the center is here, and the particles just like a covers a short interval of time, means delta t equal to 0 and t equal to t. Then this particle means a particle at circumference covers L1 distance, whereas the particle at some other places covers L2 distance. Means L1 distance is greater than L2 distance. In every constituent particles covers some different distance, and that's why rotational motion is different than translatory motion. Translatory motion means a body moves on a straight line, all constituent particles cover equal distance in equal interval of time, whereas in rotational motion all constituent particles covers unequal distance in equal interval of time. This is the difference between translatory motion, rotational motion, rectilinear motion and curvilinear motion. The next topic is equation of motion, and the first type of motion is uniform motion. A motion in which v equal to constant and acceleration equal to 0, or equal distance, equal displacement also, equal displacement travels in equal interval of time, called uniform motion. In this type of motion,
a particle moves from point A to B and suppose the distance is S, this is the distance S, and each interval of time, suppose the journey starts from the time 0, then each interval of time 1 second, 2 second, 3 second, 4 second and 5 second, this is the time interval, and this is x in equal time interval, the distance is equal, and the distance covered by a body before the time 0, it is denoted by x naught, और this is called prior distance. इसका मतलब है कि हम जिस टाइम से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले वह बॉडी कुछ चल चुका है, तो उस टाइम उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं प्रायर डिस्टेंस. और एज यू नो दैट बाय डिफिनीशन, आप जानते हैं कि बाय डिफिनीशन से v इक्वल टू आप लिखते हैं dr बाई dt, तो dr को लिख सकते हैं v dt, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt है. अगर टाइम को 0 ले रहे हैं और अगर यहाँ आप डिस्टेंस को भी 0 लीजिएगा और टोटल डिस्टेंस को s लीजिएगा, ठीक है, तो r का इंटीग्रेशन तो dr का इंटीग्रेशन r होगा, ये 0 लेंगे s लेंगे और ये v कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा, और ये आप लिख दीजिएगा t, और इसको 0 लिखेंगे और टाइम t लिखेंगे. 0 टाइम में 0 डिस्टेंस, t टाइम में s डिस्टेंस. लेकिन अगर टाइम 0 में अगर x नॉट डिस्टेंस ले लीजिएगा, x नॉट, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम इधर दिखा देते हैं कि अगर आप इसको इंटीग्रेशन dr ले रहे हैं और इसको अगर आप ले रहे हैं v dt सपोज दैट ले रहे हैं ऐसे, तो टाइम अगर 0 ले रहे हैं तो इस सिचुएशन के अनुसार dx नॉट तो पहले से ऑलरेडी इसमें है और फाइनल डिस्टेंस s ट्रेवल किया है, मतलब x नॉट से लेकर के x तक, x नॉट से लेकर के कहां तक s तक, टाइम 0 पर x नॉट लिए हैं और टाइम t पर कितना लिए हैं, s लिए, तो r आप ऐसे शो करेंगे, फिर ये x नॉट हो जाएगा और ये s लिखेंगे, v कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये t हो जाएगा, तो s माइनस x नॉट लिखेंगे और तब इसको लिखेंगे dt माइनस इतना, तो x माइनस x नॉट इक्वल टू dt हो जाएगा, तो s इक्वल टू लिखना होगा x नॉट प्लस dt लिखना होगा. ये चीज को ध्यान रखिए. और इस केस में जब हम x को t बराबर 0 को x लिख रहे हैं तो s माइनस 0 लिखेंगे और इसको फिर हम लोग इसको dt माइनस 0 लिखेंगे, तो s इक्वल टू हो जाएगा सिंपली dt. एंड द सेकेंड इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एज यू नो द इक्वेशन इज v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. दिस थ्री इक्वेशन एंड I इग्नोर द प्रायर डिस्टेंस. इग्नोर प्रायर डिस्टेंस. प्रायर डिस्टेंस को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो ले नहीं रहे हैं. अब जब इक्वेशन में एक बार समझा दिए कि अगर किसी तरह से प्रायर डिस्टेंस का कंसेप्ट आएगा तो x नॉट को भी लेके चलिएगा, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा. अब क्या कीजिए, हम जानते हैं कि इक्वेशन हम ले रहे हैं कि टू प्रूव v इक्वल टू u प्लस at, हमको इसको बाय डिफिनेशन क्या जानते हैं, acceleration is equal to dv by dt as you know. Then acceleration equal to dv by dt means dv equal to a dt. Taking integration on both sides, taking integration on both sides, दोनों साइड्स में आप इंटीग्रेशन ले लीजिए तो ये हो जाएगा dv i इक्वल टू क्या हो जाएगा a dt. अब ध्यान देना है आपको कि लिमिट क्या ले. तो अगर हम यहाँ टाइम 0 पुट करेंगे, तो जब टाइम 0 पुट कर रहे हैं तो किसी बॉडी को अगर हम जर्नी शो करें, एक बॉडी का जर्नी शो कर रहे हैं पॉइंट ए से बी तक, ठीक, इसको हम जर्नी कर रहे हैं और इस पॉइंट पर कितना वेलोसिटी है ये दिखना होगा. तो ये टाइम 0 पर हम लोग हमेशा u लेते हैं और टाइम t पर हम लोग इसको क्या लेते हैं, v लेते हैं. फिर ध्यान दीजिएगा कि अगर टाइम 0 पर क्या वेलोसिटी है u, तो यहाँ u लिख दिए. टाइम t पर कितना वेलोसिटी है तो ये v, तो यहाँ v लिख दिए.
और dv का इंटीग्रेशन जो होता है वो v हो जाता है। और आप जानते हैं कि यहाँ u लेंगे, यहाँ v लेंगे, और इज इक्वल टू a कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं, और इंटीग्रेशन dt का हो जाएगा t और 0 टू t। ये हो गया v माइनस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू टी माइनस 0, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस a। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। And to prove the second situation, to prove s equal to prove, ठीक है, then the by definition again, as you know, by definition v equal to ds by dt, as you know, and v equal to u plus at, as you proved from equation 1, and after cross multiplication it is dt, and this one is the ds. Taking integration on both sides, taking integration on both sides, okay, then ds integration of ds is equal to u dt plus at dt, okay, and this one is the integration. And after taking integration, the integration of ds is s, the integration of ds is s, and integration of u dt, integration of u dt, and plus integration of at dt. And at t equal to 0, here is t equal to 0, t equal to t equal to t, you may using this format 0 to s, okay. Then s is equal to u into t plus 1 by 2, a is constant, and the integration of t dt is t square by 2 from 0 to t, so s is equal to ut plus 1 by 2 a t square. This is the second equation, proof of second equation. If you consider prior distance in this case, suppose that the integration of ds is start with the x naught and here is the x, suppose that, then is equal to u dt, integration of u dt, time equal to 0, time equal to t, plus integration of at dt, time equal to 0, time equal to t. Then here you may write x minus x naught is equal to ut plus 1 by 2 at square. Then equation becomes x equal to x naught plus ut plus half at square. And third equation of motion, to prove v square equal to u square plus 2as, okay. As you know, again by definition, a is equal to dv by dt, and you may multiply and divide by ds and ds, okay, this line. Then a is equal to dv by ds or ds by dt into v, and it becomes v dv equal to ads, or ads is equal to v dv. This situation comes ads equal to v dv. After taking integration on both sides, you may write integration of ads is equal to integration of vd. जब इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी से लेकर के फाइनल वेलोसिटी तक, तो उस सिचुएशन में यहाँ डिस्टेंस 0 ले लीजिए, यहाँ डिस्टेंस s ले लीजिए, और चूंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर लेंगे। चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जरूर, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पूरे इक्वेशन में एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेते हैं और इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। आइए ds हो जाएगा, आइए हो जाएगा 0 से लेके कहां तक, s तक। अब v dv का तो इंटीग्रेशन आप लोग को जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो एक फॉर्मूला यहाँ डालते हैं कि x ds कहीं भी रहेगा तो x प्लस 1 बाई 1 प्लस
1 कर दीजिएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 कर दीजिएगा, इसलिए यहाँ पर बी स्क्वायर बाई 2 लिख रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका s माइनस 0, a इसके साथ रहेगा और ये आपका u और v रहेगा ही, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो तीनों फॉर्मूला जो है आप लोग का डिराइव हो गया। 3 फॉर्मूला जो मेजर फॉर्मूला है उसको थोड़ा समराइज करते हैं एक बार में। जैसे कि आप लोग पहले प्रूफ किए थे, a निकालना होगा तो आप dv बाई dt कीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। और जस्ट इसको क्या कीजिए, क्रॉस dv इक्वल टू a dt कर दीजिए और इंटीग्रेशन करके लाइएगा तो v इक्वल टू u प्लस at हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन में हम बनाए थे कि v इक्वल टू ds बाई dt किए थे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में क्या कीजिएगा कि ds को कर दीजिएगा v dt कर दीजिएगा, और जब इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा आप, है ना, और v को एक और स्टेप याद रखिएगा कि ds को लिखिएगा v को u प्लस at और इंटू dt कर दीजिएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तीसरा सिचुएशन में हम क्या लिखे हैं कि एक्सेलरेशन को लीजिएगा, ठीक है, अगेन एक्सेलरेशन लीजिएगा और dv बाई dt लिखिएगा, और dv को यहाँ एक और यहाँ चेंज है, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिएगा s से, जो अभी हम किए हैं। तो इस केस में a इक्वल टू v dv हो जाएगा, और इस केस में ये नीचे तो ds है, तो ds को आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए a ds, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा आप तो ये निकल के आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये एक समरी टाइप का है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेना है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। मतलब ये हम लोग पढ़ ही रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब इस केस में a का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। अगर a वेरी करेगा, वेरिएबल रहेगा, एक्सेलरेशन अगर वेरी करेगा, तब के लिए ये सारा इक्वेशन वैलिड नहीं है। और एक बात और, एयर भी इग्नोर करना है, एयर का भी रेसिस्टेंस इग्नोर करना। अगर एयर का रेसिस्टेंस हम लोग को कंसीडर करना होगा तो इक्वेशन चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो एयर रेसिस्टेंस को भी हम नहीं ले रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि हम सारा इक्वेशन जो अप्लाई करेंगे वो वैक्यूम में अप्लाई करेंगे, इग्नोर कर रहे हैं एयर रेसिस्टेंस को, ठीक है। अगर एयर रेसिस्टेंस निकालना होगा तो उस केस में क्या कीजिएगा, हम थोड़ा हिंट कर देते हैं। देखिए, कोई बॉडी अगर आप इसको फ्री फॉल का ही समझिए, ये फ्री फॉल हम नीचे की ओर ए एक्सेलरेशन से गिरा रहे हैं, नीचे की ओर एक्सेलरेशन कितना ए है, तो जब नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg, तो एयर रेसिस्टेंस ऊपर लग जाएगा। तो नेट फोर्स जब आएगा तो आप इसको लिखिएगा mg माइनस r, तो जो ma लिखिएगा तो mg माइनस r हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वह mg माइनस r बाई कितना लिखिएगा m, मतलब g माइनस r बाई m हो जाएगा। आप सोचिए, अभी आप फ्री फॉल में कितना ले रहे थे, g ले रहे थे एक्सेलरेशन, लेकिन जब हम डेरिवेशन किए हैं तो कितना एक्सेलरेशन आ गया, तो ये g का वैल्यू घट गया कितना से, r बाई m से। तब ये डिपेंड करता है कि r कितना होगा, और ये r डिपेंड करता है कि इस बॉडी का साइज कैसा होगा, एयर का डेंसिटी कैसा होगा, वहां पे एयर किस मात्रा में है, आप माउंटेन पे निकाल रहे हैं कि प्लेनर एरिया में निकाल रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर को हम लोग इग्नोर करते हैं, और इग्नोर नहीं करेंगे तो आप लोग का कैलकुलेशन और डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए जो सिंपल मैकेनिक्स है, जो काइनेमेटिक्स है, इसलिए कहते हैं कि फोर्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। अगर काउंट करने लगेंगे तो ये सिंपल नहीं रह जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो फर्दर आप अलग अलग केस में जब फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़िएगा तो वहां अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स पे बात करते हैं। आर्टिकल्स क्या, जैसे अभी हम यूज किए थे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो इसी इक्वेशन को अगर हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कर दे तो 2as हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है v प्लस u v माइनस u इक्वल टू 2as। यानी कि अब a का वैल्यू जैसे हम लिखते हैं v इक्वल टू u प्लस at, तो a को क्या लिख सकते हैं, v माइनस u बाई t। तो इस पोजीशन पे आप वही वैल्यू पुट कर दीजिए,
कि v माइनस यू बाई टी आई इंटू एस, v माइनस यू और इधर भी जो है v माइनस यू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, v प्लस यू इक्वल टू 2s बाई टी। एक नया फॉर्मूला हमको मिल गया। इस फॉर्मूला में असलरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अप्लाई होगा यूनिफॉर्मली असलेटेड मोशन के लिए ही, लेकिन यहाँ पे असलरेशन पुट करने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात, जो एक कॉमन फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि s बाई टी इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। देखिए ये जो है एवरेज स्पीड निकल गया, गौर कीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। एवरेज स्पीड का ये एवरेज वेलोसिटी का ये बात यही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्योंकि लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं जनरली, इसलिए हम वेलोसिटी कभी बोल देते हैं, कभी स्पीड बोल देते हैं, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और लीनियर मोशन है, इसलिए डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। देन ये जो केस आप देख रहे हो, ये देखो u v प्लस यू बाई टू, मतलब ये मीन वैल्यू है फाइनल और इनिशियल बाई टू, लेकिन ये हमेशा लागू होगा केवल यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन के लिए। लेकिन आप कहिएगा कि सर ये तो लागू हो जाएगा किसके लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए भी आंसर आ जाता है, लेकिन ये डेरिवेशन जो आया है ये यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन के लिए आया है। तो इस केस में जब हम इसका आउटकम्स की बात करते हैं, इस फॉर्मूला के आउटकम्स का, तो दो आउटकम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक v प्लस यू इक्वल टू 2s बाई टी और एक जो है एवरेज स्पीड इक्वल टू या वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस यू बाई टू। द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन tth सेकेंड। tth सेकेंड का मतलब क्या होता है, tth सेकेंड का मतलब आप देखिएगा कि t माइनस 1 सेकेंड, t क्या है, टाइम टेकन बाय बॉडी इन जर्नी, इन होल जर्नी कर दीजिए, इन होल जर्नी, जितना जर्नी आपका हुआ उसमें टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम टेकन। और टीटीएच जो बोलेगा इसका मतलब हुआ t माइनस 1 सेकेंड, मतलब उस जितना जर्नी किया उसमें से 1 सेकंड को माइनस कर दीजिए। तो इस सिचुएशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करें, एस टीटीएच क्या लिखिएगा, अगर एस टीटीएच कोई पूछा तो लिखिएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन लास्ट 1 सेकेंड, इन लास्ट 1 सेकेंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिरी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन एस टीटीएच, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी इन लास्ट 1 सेकेंड, आखिरी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम मान लेते हैं कि बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला होगा, ठीक, और इसको चलने में जो टाइम लगा t इक्वल टू 0 से लेकर के टाइम t इक्वल टू t तक लगा। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोई नाम दे दीजिए, p नाम दे देते हैं, और इसमें जो टाइम है वो t माइनस 1 लगा। तो जो ये डिस्टेंस होगा वह x टीटीएच कहलाएगा। x कहिए या s कहिए, हम यहाँ s लिखे हैं तो इसको s लिख देते हैं। s टीटीएच मतलब 7वां सेकेंड, 6ठा सेकेंड, 5वां सेकेंड, ऐसा कुछ रहे, मतलब ये मान ली 7 सेकेंड है तो इसका मतलब वह ये 6ठा सेकेंड वो 7वां सेकेंड, 6 से 7 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए क्या करना होगा, ये मेथड एक और चीज सिखाएगा। क्या सिखाएगा कि आप ये निकालना सीख जाइएगा कि आखिर में हम क्या चीज कॉमन करें। कभी कभी फिजिक्स के क्वेश्चन आने में जब देखिएगा कि हम इक्वेशन कैसे राइट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी तो आप कहिएगा सर हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो लास्ट का या फिर सेकंड का है, तो ऐसा कीजिए कि पहले टोटल जर्नी का निकाल लीजिए। इसको मान लेते हैं कि ये S1 जर्नी का डिस्टेंस हुआ, और इसको आप मान लीजिए कि ये S2 जर्नी का डिस्टेंस हुआ, मान लेते हैं, और ये यूनिफॉर्मली असोलेटेड है। ये सब ध्यान रखिएगा, यही सब कंसेप्ट होता है कि आखिर ये कब अप्लाई हो रहा है। यूनिफॉर्मली असोलेटेड मोशन है ये, है ना। ये सब चीज जो मिस कीजिएगा तो फिर कंसेप्ट मिस हो जाएगा। ये सब बार बार लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि अब यूनिफॉर्मली असोलेटेड है और कहीं और लगा दीजिए फॉर्मूला को तो फिर वैलिड नहीं होगा। ये ध्यान रखना होगा, जहां पे जो कंडीशन है
फॉर्मूला उसी के लिए बनता है ना, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं वही मान करके, तो फिर फॉर्मूला भी एप्लीकेबल होगा वही सिचुएशन में। तो S1 कैसे निकालेंगे, तो S1 निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है, और अब तो यहां से जर्नी किया है तो यहाँ कुछ ना कुछ u लेंगे, इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ v लेंगे, इसे तो लेना ही पड़ेगा। कि S1 क्या होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ut प्लस 1/2 AT²। क्लियरली हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो S2 कितना होगा, S2 फिर वही हो जाएगा, लेकिन ये अंतर क्या होगा, यहाँ t-1 कर देंगे और इसको फिर लिखेंगे 1/2a और t-1 का होल स्क्वायर कर देंगे बस, और दोनों को घटा देंगे। आपको अब मन करे तो अपने से करके देख लीजिए, आंसर मिल जाएगा तो खुशी मिलेगा आपको, नहीं तो देखिए डेरिवेशन इसका। तो अब इसको क्या करना है कि S/Tth निकालना है। तो S/Tth में क्या करेंगे कि S1 को S2 से माइनस कर देंगे, बस इतना ही तो काम करना है, छोटा सा काम करना है और कुछ नहीं करना है। माइनस साइन उसको कर देना है, S1 को माइनस करना है किससे, S2 से माइनस करना है बस। तो S1 S/Tth जो हम निकाल रहे हैं, S/Tth मतलब S1 माइनस S2। S1 कितना है देखिए ut, ठीक है, प्लस 1/2 AT², ये हो गया। अब माइनस कीजिए, किससे करना है, तो u तो वही रहेगा, t-1 कर दीजिए प्लस 1/2a t-1 का होल स्क्वायर, और इसको थोड़ा ब्रैकेट चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि ये तो ut हुआ प्लस 1/2 AT² लिख रहे हैं माइनस, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम थोड़ा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ut माइनस u हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2a। अब इसको तोड़ दीजिए, पहले t² माइनस 2t a² माइनस 2ab और प्लस b², तो b² तो 1 ही हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब इसको लिखेंगे ut प्लस 1/2 AT² माइनस, ये हो जाएगा ut माइनस u प्लस 1/2 AT² माइनस कितना हो जाएगा 80, 2 कैंसिल, तो अब बच जाएगा ये a/2, ये हो गया, ठीक। अब इसमें देखना होगा, एक और छोटा सा ब्रैकेट है, इसको रिमूव कर देते हैं पहले। तो ये हो जाएगा आपका ut, ठीक, ये हो जाएगा आपका ut प्लस 1/2 AT² माइनस ut प्लस u, माइनस माइनस प्लस u। इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, है कि कभी कभी कंसंट्रेशन लूज होने से माइनस प्लस में अंतर आ जाता है। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक, ut कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, तो बच गया आपका u प्लस 80 माइनस a/2। अब देखिए इसमें a कॉमन कर सकते हैं, आप कर लीजिए, तो t माइनस कितना हो जाएगा 1/2। आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो थोड़ा और फॉर्मेट चेंज कर लीजिए। इसको अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये कितना निकल जाएगा 2t माइनस 1। तो दोनों में से कोई फॉर्मेट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए कि ये जो है आखिरी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो S/Tth इक्वल टू u प्लस 1/a/2 a एक्सेलरेशन और 2t-1, t मतलब टोटल टाइम, कितना टाइम जर्नी में लगा, ठीक है। अगर आपका आंसर आ गया होगा तो बहुत अच्छा, खुशी की बात है, और नहीं तो देख लीजिए। एक एग्जाम्पल लिए हैं, इसको थोड़ा हम लोग करते हैं, इसमें थोड़ा कुछ कंसेप्ट है इसलिए इसको लिए हैं। तो ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, देखिए जो कहता है कैसे क्वेश्चन का टाइम लेते हैं वो ध्यान दीजिएगा। एक कार जो है रेस्ट से स्टार्ट किया है, सपोज है, देखिए कार बना रहे हैं इसको हम, और पता नहीं कौन सा कार है, तो कह रहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u बराबर 0, कांस्टेंट एट अल्फा। कह रहा है कि ये जो है एक्सेलरेट कर रहा है कांस्टेंट रेट से, ये अल्फा से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, u 0 है, एक्सेलरेशन अल्फा है। आफ्टर विच फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ही, पूरी समय नहीं, जब मान लेते हैं कि यहाँ पहुंचा होगा, अगर यहाँ पे हम टाइम बराबर 0 ले रहे हैं और इस पॉइंट पर टाइम t1 ले रहे हैं, तो जब इस पॉइंट पर यह कार पहुंचा होगा तभी तक के कह रहा है कि यह एक्सेलरेट होगा।
उसके बाद कह रहा है कि इट डिसलरेट्स एट ए कांस्टेंट एट बीटा, ये एक्सेलरेशन है अल्फा और बीटा, तो इस पॉइंट से ये डिसलरेट कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन आ गया, एक्सेलरेशन का और डिसलरेशन का कॉम्बिनेशन आ गया, डिसलरेट्स, लेकिन दोनों कांस्टेंट है, इसमें डरने वाली बात नहीं, दोनों एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रेट से है और डिसलरेशन भी कांस्टेंट रेट से है। तो कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, अब फाइनली जो है ये समझ लीजिए इस पॉइंट पर गया, ये कार यहाँ आ गया, जो पहले वहां उस पॉइंट पे था, ये कार यहाँ आ गया और इस कार पॉइंट पे जाकर के वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब यहाँ u 0 था, एक्सेलरेट किया, फिर जाकर के ये डिसलरेट हो गया और ये फाइनली जो है कार क्या हो गया, 0 हो गया, रेस्ट में आ गया। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर जब ये पहुंचा होगा बॉडी, तो इस पॉइंट पर इसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। समझे कि नहीं? कोई कार है बहुत तेजी से जा रहा, जब तेजी से कार निकला होगा तो फर्स्ट तो वो एक्सेलरेट किया, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। कुछ समय तक जब जहां तक लास्ट एक्सेलरेशन होगा, जहां तक वो एक्सेलरेट कर गया रहेगा, तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी जाकर के मैक्सिमम हो जाएगा। जब मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑक्युपाइड एंड द कार और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब ये भी डिस्टेंस कह रहा है। अगर ये x1 डिस्टेंस है और ये x2 डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस कह रहा है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर पॉज कर लीजिए वीडियो, अगर आपसे बनता है तो बना लीजिए और नहीं तो देखिए। प्रत्येक क्वेश्चन में एक क्लू होता है, उस क्लू को खोजना पड़ता है कि आखिर वो क्लू है कहाँ। देखिए इसमें एक क्लू आपको दिख रहा होगा कि टोटल टाइम लिखा हुआ है कि टोटल टाइम इलैप्स्ड कितना, तो t टाइम इलैप्स कर रहा है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन लिखते हैं, फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन, ठीक, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे, तो आप ही देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट के मतलब क्या, नाम दे दें, ए बी सी, 3 नाम दे रहे हैं, ए बी सी। तो नेमी हम पहला पार्ट लेके चल रहे हैं ए टू बी में। ए टू बी में हम क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते हैं आप लोग, तो v के जगह पर आप लिखिएगा v मैक्स, ठीक है। u तो 0 है और a तो अल्फा है और t t1 हो जाएगा। हम मान ले रहे हैं कि t1 टाइम में जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि t1 इक्वल टू आप लिखिएगा v मैक्स बाई अल्फा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो सिमिलरली सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन में चलिएगा, सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन में चलिएगा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन में चलिएगा, तो इस केस में क्या कीजिएगा, फिर वही लगाइए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी ही लगाइए, तो दूसरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस केस में आप क्या कीजिएगा, v को तो 0 ले लीजिएगा, लेकिन ये चल रहे हैं हम कहाँ, b से c चल रहे हैं, तो यहाँ u लेंगे, कौन सा लेंगे, v मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। और ये डिसलरेट कर रहा है इसलिए हम माइनस b लेंगे और टाइम t2 लेंगे, यानी कि अगेन आपका जो t2 निकलेगा वह हो जाएगा v मैक्स बाई कितना हो जाएगा, बीटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यानी कि टोटल टाइम आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो t लग रहा है, तो t इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम t1 प्लस t2 इक्वल टू t लिख सकते हैं। और t1 कितना निकाले हैं, तो v मैक्स बाई अल्फा निकाले हैं और v मैक्स बाई बीटा निकाले हैं और इक्वल टू t हो जाएगा, यानी कि v मैक्स हमारा कॉमन हो गया, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू t हो गया। यानी कि v मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा वो हमारे जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से, ये अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये अल्फा प्लस बीटा इंटू टी हो जाएगा, यानी कि v मैक्सिमम जो निकल गया वह निकल गया अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग को निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो 2 पार्ट में इसको बांटे हैं, x1 और x2, उसी तरह से हम 2 पार्ट में ही चलेंगे, तो इसलिए ये थोड़ा इक्वेशन अब चेंज करेगा। तो हम आते हैं इक्वेशन चेंज में, जैसे a टू b आप चल रहे हो, तो यहाँ लिखोगे क्या कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जो फॉर्मूला लगाते हैं,
तो इस केस में v को तो आप v मैक्सिमम लिखिएगा, u भले 0 ले सकते हैं यहाँ, और ये 2 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, यानी कि x1 का जो फॉर्मूला हो गया v मैक्स का स्क्वायर अब बाई क्या लीजिएगा 2 अल्फा, यानी कि अगेन हो गया इक्वेशन नंबर 3 या 4 कर लीजिए, 3 इक्वेशन इससे कर इसको बना लीजिए, दिस इज द थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। एंड नाउ द सिचुएशन इज in second case b to c, you again using the formula v square equal to u square plus 2as। इस केस में v का वैल्यू 0 हो जाता है और u को आप लिखिएगा इस तरह से और -2 बीटा x2 हो जाएगा। हम यहाँ माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि असलेशन इस केस में जो है असलेशन को आप लीजिएगा माइनस बीटा, इस तरह से माइनस बीटा। तो आप जो हो जाएगा x2 का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a v मैक्स का स्क्वायर बाई 2 बीटा। जिस तरह से टाइम आप जोड़े थे अब उसी तरह से डिस्टेंस जोड़ दीजिए तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकल जाएगा। मतलब इस केस में आप लिखिएगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या कीजिएगा दोनों को जोड़ दीजिए, कैसे x1 प्लस x2 कर दीजिए। x1 कितना निकाले थे आप v मैक्स का स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस v मैक्स का स्क्वायर बाई 2 बीटा, यानी कि v का जो स्क्वायर है उसको हम कॉमन कर सकते हैं तो आप इसको ले लीजिए v मैक्स का स्क्वायर और 1 बाई 2 अल्फा प्लस 1 बाई 2 बीटा, इस तरह से। तो 2 को तो आप कॉमन कर लीजिए तो v मैक्स का स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या, ये बच गया कितना 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई, तो टोटल डिस्टेंस को अगर हम x माने तो x इज इक्वल टू हो गया आपका v मैक्स का स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा एंड पुटिंग दिस वैल्यू v मैक्स का वैल्यू तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, 2 पहले से है और इस केस में अल्फा प्लस बीटा होगा ही बाई अल्फा बीटा, दिस एंड दिस स्क्वायर कैंसिल आउट, एक अल्फा बीटा कैंसिल, तो टोटल डिस्टेंस जो निकल के आया हम लोग का अब फाइनली वो हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा कि अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 और इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो एक आंसर आपका ये आया और एक आंसर ये आया। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस मीन्स अ कार अप्लाई द ब्रेक एंड आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स, then what is the distance after taking the break? ब्रेक लगाने के बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है that distance is called a stopping distance। तो इसके लिए हम एक कंसीडर कर रहे हैं कि एक कार है जो मूव कर रहा है कुछ u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u ले रहे हैं, इसको हम टाइम 0 ले रहे हैं इसीलिए यहाँ u बोल रहे हैं, और फाइनली ब्रेक लगाए, असलेट नहीं डिसलेट कर रहा है बॉडी, इसको हम लोग डिसलेट कहेंगे कि बॉडी क्या कर रहा है डिसलेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, और फाइनली जब रुक गया तो जो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इज कॉल्ड अ स्टॉपिंग डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार और बॉडी ट्रेवल्ड बाय कार और बॉडी आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है बॉडी उस डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो सिंपली आप जानते हैं फॉर्मूला कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी तो 0 हो गया, यू तो आप ले सकते हैं, यू को आप कुछ भी ले सकते हैं या जो भी, और माइनस 2s, तो जो ये हुआ ये यू स्क्वायर बाई 2a निकाले, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड यू स्क्वायर बाई 2a, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड अ स्टॉपिंग डिस्टेंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन टाइम। Reaction time is the time taken by any person या observer
टू थिंक एंड एक्ट, ऑब्जर्वर टू थिंक एंड एक्ट, सोचा और उस पर काम किया। जैसे कार चला रहा है कोई व्यक्ति, आगे एक हर्डल दिखा तो उसको ब्रेक लगाने में, देखने और देख करके ब्रेक लगाने में जितना समय लगता है उस समय को हम लोग रिएक्शन टाइम कहते हैं। सपोज दैट एक हम स्टिक ले रहे हैं, ठीक, इस स्टिक को क्या करें कि हम इस तरह से पकड़े हुए हैं, नीचे बॉटम में पकड़े चाहे बीच में कहीं पकड़िए, और एक बार इस पोजीशन पे इसको आप छोड़िएगा और जो आप नीचे वाला जो पोर्शन है, जो थंब और फिंगर है, उससे आप पकड़ लीजिए ऐसे करके। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया उस डिस्टेंस को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगेन एक बता रहा है एक्सपेरिमेंट हम आपको रिएक्शन टाइम निकालने का। एक स्केल ले लीजिए, स्केल पे सब नंबरिंग क्या रहता है 1 2 3 4 जो सेंटीमीटर में है। अब क्या कीजिए कि इस जिस पोजीशन पे आप इस फिंगर को रखे हुए हैं, इस फिंगर का लेंथ देख लीजिए कि कितना सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं। अब जैसे ही इसको आप छोड़िएगा उसके बाद इसको पकड़ लीजिए, तो जितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया वह डिस्टेंस को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नोट करने के बाद क्या कीजिएगा, जब नोट कर लीजिएगा इसको, तो फॉर्मूला है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्योंकि एस तो आप काउंट कर लीजिएगा कितना डिस्टेंस आपको, या उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आफ्टर आपका यू जीरो ले रहे हैं आप, और ये तो आपका जी टी स्क्वायर होगा। तो टी जो निकलेगा उसको 2d बाई जी कर दीजिएगा अंडर रूट। ये स्केल एक्सपेरिमेंट है ना, स्केल एक्सपेरिमेंट में ये, और बाकी रिएक्शन टाइम अलग अलग तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन इस केस में जो स्केल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें आप डी ले लीजिएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना टाइम में, एक छोड़ने और पकड़ने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम को काउंट करना है, कितना टाइम काउंट किए हैं, तो कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल किए और उसको जी से डिवाइड कर दीजिए। और नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डी बाई 4.9 को होल आउट कर दीजिएगा तो आपका रिएक्शन टाइम निकल जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल अप्रोच ऑफ मोशन। ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफ से हम मोशन को कैसे स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा केस आएगा जिसको हम लोग डील करेंगे। तो हम लोग ग्राफ में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ जरूरी है पढ़ना, या स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ भी कुछ बढ़ा देते हैं स्ट्रेट लाइन, इसे हम ऑलरेडी सब कर चुके हैं। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आप लोग इक्वेशन जनरल कॉमन लिखते हैं mx प्लस सी, इसके बारे में थोड़ा जानना होगा। तो इस केस में आप देखिएगा कि x एंड y जो होता है, x एंड y ये वेरिएबल है, ठीक। m को ही स्लोप कहते हैं, m को हम लोग स्लोप कहते हैं, स्लोप को tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। मतलब ये स्लोप मतलब होता है चेंज इन y एक्सिस बाई चेंज इन x एक्सिस, और c को बोलते हैं कट पॉइंट ऑन y एक्सिस, कट पॉइंट ऑन y एक्सिस। यही अब डिपेंड करता है, देखिए x और y का तो वैल्यू जो होगा सो होगा, अगर m निगेटिव है कि c पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डिपेंड करता है ये सारी चीज पर कि ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे एक चीज हम बताते हैं यहाँ पे सिंपल वे में, ये x है ये y है, ठीक, ये ओरिजिन 0 है। तो अगर कोई इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करता है इस तरह से, तो इसका मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू mx प्लस c कह रहा है। कोई ओरिजिन से अगर पास कर दिया तो y इक्वल टू mx कह रहा है, अगर कोई इधर से पास कर दिया तो y इक्वल टू mx माइनस c कह रहा है। लेकिन अगर कोई ग्राफ इस तरह से पास कर दिया तो ये जो ऐसे ग्राफ कोई पास कर दिया तो ये इक्वेशन जो हो जाएगा माइनस mx प्लस c। तो इन सारे चीजों को समझना होगा कि आखिर में ये जो इक्वेशंस जो बना हमारा 1 2 3 4 और भी तरह का हो सकता है, होता ही है, हो सकता है क्या होता ही है, तो उसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं फिलहाल। विशेष तौर से हमको इसका इस्तेमाल करना है कि मोशन में कैसे इसका इस्तेमाल करें, कैसे इसको हम बनाएं। तो सबसे पहला ग्राफ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वर्सेस टाइम ग्राफ। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये जो वेलोसिटी टाइम तो हमेशा इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो वैसे वेरिएबल को आप रखिएगा x एक्सिस पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको रखिएगा y एक्सिस पे। तो इसको आप लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, उधर ले लीजिएगा क्या टाइम।
तो इस पोजीशन में 4-5 तरह का ग्राफ पॉसिबल पढ़ना है हम लोग को। पहला पढ़ना है इस तरह ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ जो होगा वो इस तरह से क्रॉस करेगा। थर्ड ग्राफ जो होगा इस तरह से होगा। फोर्थ ग्राफ होगा तो इस तरह से होगा। फिफ्थ ग्राफ होगा तो इस तरह से भी। और भी कुछ होता है इसके बाद हम बताते हैं। इतना पहले डिस्कस कर लें हम लोग कि ये 5 तरह के ग्राफ जो है क्या क्या कौन क्या कह रहा है। तो ग्राफ 1 में आप क्लियरली देख रहे हैं, ग्राफ नंबर 1 में आप देख रहे हैं, ठीक है। ग्राफ 1 में देखिएगा क्या कि बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डज नॉट चेंज पोजीशन, डज नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू या एज पासेस टाइम, एज पासेस टाइम। टाइम के पास करने के साथ वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ये पोजीशन इसका फिक्स है, क्योंकि ये बाई एक्सिस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज को, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाई ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, बाई एकदम कांस्टेंट है। इसलिए इसको कहते हैं कि बॉडी क्या चीज में है, रेस्ट में। ये बॉडी मोशन में नहीं है, बॉडी क्या चीज में, रेस्ट में। अब ग्राफ नंबर 2 की बात करते हैं। ग्राफ नंबर 2 क्या कह रहा है। ग्राफ नंबर 2 में आप देख रहे हैं ये स्लोप का जो हम जिक्र किए थे, ये स्लोप का, इसमें ध्यान देना ये बात है कि अगर किसी का एंगल कांस्टेंट है, थीटा क्या है, कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं कर रहा, थीटा वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसका स्लोप भी कांस्टेंट होता है। तो स्लोप का मतलब आप देखिएगा, चाहे आप इसको, अब इस चीज को देखिए आप, ये इस केस में आप देखिएगा कि ये आपका चेंज इन वाई एक्सिस हुआ, आई चेंज इन एक्स एक्सिस हुआ। मान लीजिए 0 है, यहाँ t है। और भी पॉइंट आप ले सकते थे, सपोज आप इस तरह से 2-3 पॉइंट और ले लीजिए, इस तरह से पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। ठीक, अब एक इक्वेशन बना लीजिए, y इक्वल टू 3x + 2 ले रहे हैं, एक टेबल बना लीजिए, ठीक। y इक्वल टू 3x, क्योंकि हम ओरिजिन से क्रॉस कराए इसीलिए, ठीक है। अगर नहीं कराते ओरिजिन से ज्यादा बेटर होता, थोड़ा इसको हम चेंज कर दें। तो देखिए इस इक्वेशन में हम लिख रहे हैं कि y इक्वल टू 3x + 2 अगर लिखे, ठीक है, तो y x का वैल्यू जो है, अगर आप लिख रहे हैं कि x का वैल्यू 0, कॉलम बना दिए x बाई, x को 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 2, x का वैल्यू 1 रखे तो y कितना हो गया 5, x का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y कितना हो गया 8, x का वैल्यू अगर 3 रखे तो y कितना हो गया 11, x का वैल्यू अगर हम 4 रखे तो y कितना हो गया 40। बस नहीं बात, x बराबर 0 तो ये 2 है ऑलरेडी, x 1 तो कितना हो जाएगा 5, x अगर 2 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 8, x अगर 3 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 11, x अगर 4 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 40। देखिए सर 3-3 के आपका रेशियो में, डिफरेंस में। तो अब ये समझाना हमको ये काम है कि अगर हम स्लोप निकाल रहे हैं, देखिए ये स्लोप मतलब ये चेंज इन y एक्सिस हुआ, चेंज इन x एक्सिस हुआ, तो यानी कि tan थीटा यानी कि m यानी कि स्लोप चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस। तो इस पोर्शन में y एक्सिस कितना चेंज कर रहा है, तो 3 चेंज कर रहा है, x कितना चेंज कर रहा है, तो ये 4 - 3 तो यहाँ 1 हो गया, इसीलिए यहाँ पर 3/1 इक्वल टू क्या हो गया 3। अब इसको चाहे बड़ा लेकर के चेंज निकालिए, अब इस पोर्शन पे निकाल रहे हैं, ये पूरा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हम लिख रहे हैं। अगेन इसको हम कुछ थीटा ही लिख रहे हैं, जो होगा भी थीटा, लेकिन आपको दिखाना है हमको कैसे थीटा होगा। तो इसको भी आप चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस लिखिए। अब इसका चेंज कितना होगा ये समझिए, तो ये तो 11 14 है, ये 5 है, तो कितना हो गया 9, मतलब 14 माइनस कितना 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। और x एक्सिस में कितना चेंज हुआ, 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 3। तो अब यहाँ देखिए 9/3 कितना हो गया 3। और भी आप ले सकते हैं, कहीं भी लीजिएगा, तो जब एंगल चेंज नहीं कर रहा है तो स्लोप चेंज नहीं करेगा। एक सीरियस बात यही है कि अगर एंगल चेंज नहीं कर रहा है तो स्लोप नहीं चेंज करेगा। स्लोप अलग अलग वैल्यू, अलग अलग ग्राफ में स्लोप अलग अलग देता है। यहाँ क्या देगा, तो आप एक स्लोप में लिखते हैं चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस।
चेंज इन वाई एक्सिस ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट होगा और चेंज इन एक्स एक्सिस ऑलवेज टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और ये कांस्टेंट है, ये थीटा क्या है, कांस्टेंट है। जब थीटा कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट हो गया, मतलब tan थीटा कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं कर रहा, कांस्टेंट है। यानी कि वेलोसिटी ये दे रहा है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट। यानी कि ग्राफ 2 जो है यूनिफॉर्म मोशन में होगा। निकल करके आया कि ग्राफ 2 जो है यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यानी ग्राफ 2 इंडिकेट्स बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगा, तो इस केस में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ 2 के बारे में हो गया। अब ग्राफ 3 के बारे में आते हैं। ग्राफ 3 में जो देख रहे हैं आप, उसको ऐसे समझाते हैं, ये टाइम हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, और ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, अलग अलग हम टाइम ले रहे हैं। यहाँ टाइम t ले लीजिए, कुछ टाइम ले लीजिए, यहाँ t, यहाँ टाइम ले लीजिए t1, यहाँ टाइम t2, यहाँ टाइम 3, यहाँ 0। अब देखिए स्लोप निकालना होगा। स्लोप निकालने के लिए क्या कीजिए, आप एक स्केल लीजिए और स्केल से इसका टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। हर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ऐसे ये टेंजेंट ये ड्रॉ किए हम। टेंजेंट के मतलब एक लाइन जो होता है तो वो टच करते हुए किसी पॉइंट से निकलता है, उसी को आप टेंजेंट कहिएगा। इस तरह से, इस तरह से हर पॉइंट से, यहाँ से ये टच कर रहा है, यहाँ से ये टच कर रहा है, तो जो एंगल होगा, ये देखिए ये एंगल हुआ थीटा, ये t1 पर ले रहे थे, थीटा1 इसको कह दीजिए, थीटा2 इसको कह दीजिए और थीटा3 इसको कह दीजिए। आपको क्या लग रहा है, कौन बड़ा है, थीटा1 बड़ा है कि थीटा2 बड़ा है कि थीटा3 बड़ा है? हाँ, आप सही बोल रहे हैं कि थीटा3 बड़ा है, थीटा2 उससे छोटा है और थीटा1 जो है उससे छोटा है, मतलब थीटा1 सबसे छोटा है। इसका मतलब हुआ कि tan थीटा3 का वैल्यू सबसे बड़ा, tan थीटा2 का वैल्यू और छोटा और tan थीटा1 का वैल्यू सबसे छोटा। और tan थीटा क्या देता है, ये वेलोसिटी देता है। यानी कि इस केस में v3 बड़ा हो गया और v2 जो हो जाएगा वह जो है और छोटा होगा और v1 वह छोटा होगा। मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीजेस एज टाइम पासेस। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी जब इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये देखिए ये बार बार हम नहीं करेंगे, ये आप लोग समझ लीजिए कि अगर हम स्लोप ड्रॉ करते हैं तो टाइम के साथ जब ऐसा ग्राफ होगा, इस तरह से ग्राफ होगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी अब दो केस में इंक्रीज करता है, या इनफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो या नॉन इनफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, ये दोनों में काम आएगा। इसलिए सिंपल इसको बोल देते हैं कि बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब ग्राफ 3 क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इसके बारे में हम इस ग्राफ को देख करके विशेष नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम रेट से अगर चेंज कर रहा हो, अगर एंगल का जो चेंज करने का दर जो होगा टाइम के साथ होगा, चेंज होगा, तो यूनिफॉर्मली बोलेंगे। अगर सेम यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहेंगे। ठीक है, तो ये तो फिर डाटा जैसा रहेगा वैसा काम करेंगे। हमको देखना पड़ेगा कि कितना टाइम में कितना एंगल का चेंज हो रहा है या किस तरह से चेंज कर रहा है, तो उससे हमको पता चलेगा कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है कि ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। लेकिन एक बात तो तय है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में यानी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, या कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। सिंपल एक वर्ड में बोलना होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ नंबर 4 का भी यही कहानी है। ग्राफ नंबर 4, अच्छा इसको भी समझा दो।
ग्राफ नंबर जो 4 है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक। अब बात ये है कि अब अलग अलग टाइम पे हम लेंगे ये टाइम, अब टाइम बढ़ा रहे हैं, देख लीजिए अलग अलग टाइम ले रहे हैं, T1, T2 और T3। अब देखिए टाइम T3 पे आप ले रहे हैं ग्राफ, पहले तो आप T1 पे ग्राफ लीजिएगा, टाइम तो आप T1 से स्टार्ट कीजिएगा, तो टाइम T1 पे आप ड्रॉ कीजिएगा ग्राफ, तो ये T1 का टेंजेंट जो होगा ऐसा होगा, T2 का ग्राफ होगा जो कुछ ऐसा होगा, T3 का ग्राफ कुछ और बड़ा हो जाएगा इस तरह का, देखिए बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, मैंने कुछ ऐसा होगा, चलिए 2 ही लेते हैं हम लोग, और ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा स्केल चाहिए, ये कुछ ऐसा होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई खास मतलब नहीं। यानी जितना हम दूर भागेंगे ये एंगल जो है ये θ1 है, क्या है θ2, तो समय के अनुसार ये थीटा घट रहा है, जैसे से थीटा बढ़ा रहे हैं टाइम बढ़ते जा रहा है और थीटा घटते जा रहा है, मतलब θ3 जो होगा वह छोटा होगा θ2 से और θ1 से, मतलब tan θ3 जो होगा वह छोटा होगा tan θ2 से और ये छोटा होगा tan θ1 से, इसका मतलब V3 छोटा होगा V2 से और हो जाएगा V, मतलब इस तरह से वेलोसिटी बॉडी का डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, लेकिन हम बोल सकते हैं यह बॉडी है जो रिटार्डेड मोशन में है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी समय। इस केस में क्या था कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था और इस केस में वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इस केस में जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिसेलेरेटेड एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे है यूनिफॉर्म, सॉरी गड़बड़ा गया, इस केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन डिसेलेरेशन है, डिसेलेरेशन यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा इसको देख करके हम नहीं बता सकते हैं, और इस केस में आप कह सकते हैं यह आप जो है डिपेंड करता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ये बार बार डील नहीं होगा, लेकिन आप समझिएगा कि अगर इस तरह से कर्व हुआ तो डिक्रीज का सेंस आता है और इस तरह के कर्व आया तो इंक्रीज का सेंस आता है। जब भी कभी गड़बड़ाइए तो टेंजेंट बना करके tan थीटा का वैल्यू देख लीजिए, अगर tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हो। अच्छा एक और बात कि tan थीटा का वैल्यू कैसे इंक्रीज करता है, तो अगर θ1 को आप 30 डिग्री लेते हो सपोज दैट, तो tan 30 डिग्री कितना होता है आपको तो पता होगा √3, और tan 45 कितना होता है, tan 45 हुआ, tan 60 कितना होता है √3। देखिए तो वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, ये 1 से कम है, ये 1 है, ये 1 से ज्यादा है, तो एंगल के बढ़ने के साथ थीटा का वैल्यू बढ़ता है, यही चीज यहाँ लिखे हैं। और घटने के साथ अगर हम उल्टा देखें तो थीटा का वैल्यू घट रहा है तो वैल्यू भी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो थीटा घट रहा है, इसमें तो वेलोसिटी क्या लिखे हैं, घटते हुए लिखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। और अब है ग्राफ नंबर 5। ग्राफ नंबर 5 में आप लोग देख रहे होंगे टाइम नहीं चेंज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बहुत तेजी से चेंज कर रहा है। तेज क्या, वो इन्फिनाइट तक चला जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि टाइम नहीं चेंज करे और वेलोसिटी चेंज करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। टाइम चेंज करने के अनुसार टाइम को चेंज करना ही चाहिए, इसलिए ग्राफ 5 पॉसिबल नहीं, ग्राफ 5 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। एक और कारण है नहीं पॉसिबल होने का, क्योंकि tan थीटा पे लीजिएगा तो चेंज इन y एक्सिस बाई चेंज इन x एक्सिस, और चेंज इन x एक्सिस 0 हो गया, चेंज ही नहीं कर रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट तो अनडिफाइंड होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं। दूसरा और भी ग्राफ एसी वर्मा वगैरह में बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन वगैरह, कि अगर कोई बॉडी अगर टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है, एक ही टाइम में अगर 2 जगह पर पोजीशन रिपीट करे तो ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा ग्राफ दे दिया तो टाइम सिंगल टाइम में बॉडी 2 जगह, शक्तिमान थोड़ी है जो एक बॉडी जो है एक टाइम में बॉडी 2 जगह रहेगा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। टाइम यहाँ दिखा रहा है और बॉडी को 2 जगह दिखा रहा है,
तो कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, एक ही टाइम में बॉडी दो जगह पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये भी कंसेप्ट आप यूज कर लीजिएगा, ये कंसेप्ट ये यूज कीजिएगा कि सेम टाइम में दो जगह, जनरली यही दो कंसेप्ट पर क्वेश्चन आता है कि एक टाइम पे दो पोजीशन बॉडी का पॉसिबल नहीं है, और एक ये आता है कि जब 90 डिग्री एंगल हो जाएगा तो उस केस में नॉट डिफाइंड। अब एक और ग्राफ की हम चर्चा करेंगे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें भी वही 5 केस जो हम लोग जनरली अभी डील किए, और इसको हम डिटेल से नहीं करेंगे क्योंकि अब आप लोग को बोर हो जाइएगा, इसको हम शॉर्ट में करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप लीजिए, टाइम इक्वल टू 0। तो एक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ नंबर 1, दूसरा ग्राफ नंबर 2, तीसरा ग्राफ नंबर 3, चौथा ग्राफ नंबर 4 और पांचवा ग्राफ नंबर 5। यही 5 ग्राफ का बात करेंगे हम। तो ग्राफ 1 में देख रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं कर रहा है समय के साथ। तो ग्राफ 1 जो कह रहा है कि ग्राफ 1 से या ग्राफ 1 से कहता क्या कहता है, वेलोसिटी बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। मतलब इस टाइम चेंज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। तो ग्राफ 1 इतना ही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बॉडी क्या से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है। सेकंड, अब बार बार स्लोप को समझाना उचित नहीं लगता है आप लोग को, चलिए खैर एक और बात, tan थीटा, तो डेल्टा पाई बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा पाई में क्या है, v है, और डेल्टा एक्स में क्या है, टाइम। तो एक्सेलरेशन हो गया ये तो कुछ है नहीं, ये एक्सेलरेशन। मतलब एक पॉइंट यहां नोट कर लीजिए कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एक अच्छा पॉइंट है। और एक इसी तरह से वहां भी था कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। 2 पॉइंट बना। तीसरा पॉइंट है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस, ये भी है ऑन टाइम एक्सिस और कोई एक्सिस पे नहीं, ऑन टाइम एक्सिस गिव्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। इसमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि अगर आपका एरिया इस तरह से निकालिएगा ऐसे, या कुछ ऐसा फिगर रहे, कुछ भी रह सकता है, कुछ इस तरह से भी रह सकता है। तो अगर इसका एरिया S1 ले ले, इसका एरिया S2 ले रहे, इसका एरिया S3 ले ले, तो अगर तीनों एरिया जोड़ दीजिएगा S1 S2 S3 तो ये डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्टेंस। और अगर S1 प्लस S2 माइनस S3 कह दीजिएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बस इतना ही इंफॉर्मेशन देना था इसमें। यानी कि स्लोप का जब हम बात करते हैं तो v/t जो देख रहे हैं ना, ये एक्सेलरेशन निकलेगा। तो एक्सेलरेशन आप देख रहे हैं कि इस केस में ये थीटा चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, मतलब थीटा कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। यानी कि tan थीटा कांस्टेंट होगा, यानी कि ये एक्सेलरेशन देता है, यानी कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब बॉडी ग्राफ क्या कर रहा है कि बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगा लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब इस केस को ग्राफ नंबर 3 अभी हम एक्सप्लेन किए थे कि अलग अलग टाइम में अलग अलग एंगल आता है, और एंगल इंक्रीज करता है समय के साथ। अगर T1 T2 3 लेंगे तो इंक्रीज करता है, मतलब इस केस में एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, मतलब एक्सेलरेशन इस केस में एक्सेलरेशन जो है इंक्रीजेस। ठीक है। उसी तरह से फोर्थ में देखिएगा कि डिसलरेट कर रहा है, बॉडी डिसलरेट, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं, नॉन यूनिफॉर्म डिसलरेशन कहेंगे इसको, बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिसलरेशन।
और इस केस में कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। और फिफ्थ में सिमिलरली, फिफ्थ में तो आप देख ही रहे हैं कि tan थीटा आप लिखिएगा तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी और डेल्टा v बाई 0 और ये हो जाएगा इनफिनाइट, और इनफिनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब ये नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। एक ग्राफ और स्पेशल है, जैसे कि कोई बॉडी अगर टाइम ले रहे हैं और ये इस तरह एक ग्राफ है और आप बोलिएगा कि सर इसमें भी तो एंगल कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए थीटा जो होता है ये एक्चुअल में अगर आप क्या लिखिएगा कि अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये थीटा क्या है 90 डिग्री से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस केस में हम लोग कैसे डील करेंगे? तो इसमें आप देख रहे हैं कि टाइम अगर 0 ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, टाइम 0 में कुछ वेलोसिटी है, और जब टाइम t ले रहे हैं तब वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यानी कि इसका मतलब तो सही है, ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होगा, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि एंगल नहीं चेंज कर रहा है, एंगल तो कांस्टेंट है और 90 से बड़ा है, लेकिन ये टाइम 0 में वेलोसिटी कुछ ना कुछ है इसका, लेकिन टाइम t में आकर के वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इस केस में ये जो है आप कह सकते हो कि बॉडी जो है यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड है। एक और भी ग्राफ है जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो ऐसे तो खास इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बनाना ही चाहते हैं कि हम टाइम और एक्सेलरेशन ग्राफ बनाएं या दिखाएं हम, तो अगर ये ऊपर दिया हुआ है तो कांस्टेंट है, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इंक्रीज कर रहा है, इस तरह से दिया हुआ है तो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या बताए कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। इसमें है कि यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है, थीटा 0 है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, तो ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस, ठीक है, और ये डिनोट कर रहा है कि ये डिक्रीजेस कर रहा है। और अगर इस पर कोई बॉडी है तो इसको बोलिएगा कि एक्सेलरेशन क्या है, 0। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, इसको रिवाइज कर लीजिए आप लोग। ये टाइम लीजिएगा, ये वेलोसिटी लीजिएगा और ग्राफ ऐसे स्टार्ट करते हैं आप लोग, ठीक ना। तो यहाँ से u लेते हैं, इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है आपका 11th क्लास में, लेकिन थोड़ा रिविजन कर लीजिएगा। तो आप इसको थीटा लिखते हो तो चेंज में क्या लिखते हो, v माइनस यू। जानते हो कि यहाँ u है, ये क्या है, v है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखते हो, स्लोप थीटा tan थीटा, स्लोप बताए तो डेल्टा बाई डेल्टा x लिखते हो। और ये पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये एक्सेलरेशन देगा, इसका मतलब ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज बाय टाइम, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, तो v माइनस यू बाई टी इक्वल टू a, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, हो गया। सेकेंड पॉइंट में आप लोग जानते हैं कि एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कह लो अभी समझाए थे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो एरिया निकालने का 2 तरीका है, या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कर लीजिए, ठीक है। तो ट्रेपीजियम क्या होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, आप लोग जानते हैं, और इंटू क्या लिखते हैं, हाइट। एक बच्चा का चीज है लेकिन हम बता दे रहे हैं ताकि कभी काम आ जाए। तो एस को हम कहते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन है, इस ट्रेपीजियम का, जो ट्रेपीजियम ले रहे हैं, ये पूरा ट्रेपीजियम जो हम ले रहे हैं, इसका पैरेलल साइड कौन है, तो एक साइड पैरेलल आपका ये हुआ u, और दूसरा पैरेलल साइड कौन हुआ, ये v, ये पैरेलल साइड हुआ। तो यहाँ लिख देंगे u प्लस v, और हाइट ये हुआ, ये हाइट कितना शो कर रहा है, तो ये t शो कर रहा है, यहाँ t लिख दीजिए। तो ये तो कॉमन, यहाँ तक तो आपको आना होगा, ठीक है, s को इस तरह से आना होगा यहाँ तक। अब क्या कीजिए कि s को 1/2, एक तरीका है कि v को चेंज कर दीजिए, तो u प्लस क्या लिखिएगा, u प्लस 80 कर दीजिए। v का वैल्यू, v का हम पुट कर रहे हैं u प्लस 80, ठीक है, और इंटू टी तो रहेगा ही। तो s इक्वल टू हो जाएगा कितना,
और u प्लस यू कितना हो जाएगा 2u प्लस 80 इंटू टी। अब ये s इक्वल टू 1/2 और इंटू 2u इंटू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये ले लिया। अब इस पॉइंट से आप अलग तरीका से भी इसको आ सकते हैं, यानी कि थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा, इससे कीजिएगा। तो कैसे कीजिएगा, तो ये s के जगह पर ut 1/2 लिखते हो और u प्लस v लिखेंगे, और जैसे लिखते हो कि v इक्वल टू यू प्लस 80 लिखते हैं, तो t का वैल्यू v माइनस यू बाई ए पुट कर दीजिए, v माइनस यू बाई ए पुट कर दीजिए, तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s।